So students, we had read in our class up to here. She laid her cheek against his arm here. यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके थे. And what is the scene? Let me tell you. Dr. Sadao, his house is before the sea. Okay, and he's standing in his veranda. है ना, वरांडा में बैठा है वो. Is actually enjoying the rain. Not rain actually, enjoying the weather actually. सामने क्या देखा उसने? What did he saw? सामने ये देखा कि धुंध थी बहुत ज्यादा. And he thought to go inside. His wife, he had 2 children, they were waiting for him. लेकिन उसकी वाइफ ही बाहर आ गई and they both stayed there. Then we read how they met each other and how they got married. ये भी हमने पढ़ लिया इसको. The history of Hannah. Who is Hannah? Hannah is wife who met him in America, and there they fell in love and then they got married as per the Japanese culture, है ना, Japanese tradition. And they did not marry heedlessly. ये लिखा हुआ देखा heedlessly होता है जल्दबाजी में शादी करना. तो जल्दबाजी में शादी नहीं करी. They came, everything was arranged in Japanese way. It was the dream of Dr. Sadao Hoki's father. Fine, they were perfectly happy couple. They had 2 children. Still they loved each other very much. Still they felt the need of each other. So they were a perfect couple, we can say. इससे आगे हम चलते हैं यहाँ से. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mists. Mists मतलब धुंध से. It was a man. He was flung out of the ocean. है ना, समंदर ने उसको बाहर फेंक दिया था. Flung out of the ocean by sea actually. So some ocean, it was sea जो था ये वो बंदा actually who came out. And who is he? इसी को हम कहेंगे prisoner of war, है ना, युद्ध बंदी. ठीक, he came. It was a man. He was flung out of the ocean. It seemed to his feet by a breaker. He staggered a few steps. होता है लड़खड़ाना. Few steps. His body outlined against the mists. Body दिखाई दी उसकी धुंध में भी. His arms above his head. सिर के ऊपर उसके हाथ थे. And then the cold mist hid him again. मतलब धुंध में फिर से वो क्या हो गया? गायब हो गया. Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. ये जो वरांडा था उनका, उस पे जो रेलिंग लगी थी उसके ऊपर झुक के देखते. लीन ओवर होता है झुक के देखना. ठीक है. So they both lean over the, ये झुक के देखना होता है. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling मतलब घिसटना एक तरीके से, रेंग रहा था वो. Then they saw him fall on his face and lie there. मतलब मुंह के बल गिरा वो. And he lied there. he lay there. वहीं के वहीं लेट गया वो. Then what happened? वो दोनों के दोनों भागते हैं देखने के लिए कि कौन सा बंदा था ये, क्या था, who that person was. A fisherman perhaps, Sadao said, washed from his boat. हो सकता है बोट से नीचे, washed from मतलब बोट से नीचे फेंक दिया वो पानी ने. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came, her wide sleeves flying. A mile or two away on either side there were fishing villages. 1 या 2 मील दोनों तरफ ये सी है ना, वो यहाँ है. दोनों तरफ क्या है? सामने समंदर है, विलेजेस हैं, फिशिंग विलेजेस हैं. But here was only the bare and lonely coast. लेकिन यहाँ तो जो कोस्ट था वो लोनली था, वहां कोई नहीं हो सकता था. डेंजरस था, डेंजरस विद रॉक्स. अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा क्योंकि जो कोस्ट था, किनारा था, वहां रॉक्स थी बहुत ज्यादा. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Rocks with was spiked का मतलब होता है नुकीली होना. Spiked with rocks मतलब नुकीली क्या थी वहां पे? ऐसी पैनी नुकीली चट्टाने थी, पत्थर थे जिनके अंदर से निकल पाना. और ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? ऊपर पानी है. पानी के ऊपर क्या है? सर्फ, जहाज है,
लहरें हैं, तो बड़ा मुश्किल था यहाँ से आना। भले ही दोनों तरफ जो है ना गाँव थे, किसके गाँव थे दोनों तरफ? फिशरमैन के, लेकिन वो वहाँ यहाँ नहीं आते होंगे। बट उन्होंने सोचा मे बी कोई फिशरमैन हो। Somehow the man had managed to come through them. He must have been torn, मतलब बुरी तरीके से कट गया होगा, घायल वो ज़रूर हो गया होगा बहुत ही बुरी तरीके से। Then they saw then they saw when they came toward him, and indeed it was so, मतलब ऐसा ही मिला उनको, वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। The sand on one side of him had already a stain of red soaking. रेड सोकिंग का मतलब है रेड सोकिंग थ्रू, बिल्कुल ग्रेट गीला हो गया था, रेड हो गया था क्योंकि उसको गोली लगी हुई थी। ही इज वुंडेड, सदाव एक्सप्लेन। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, मोशनलेस, ना हिलना बिना हिलना डुलना। हिज फेस इन द स्टैंड, एन ओल्ड कैन एन ओल्ड कैप स्टक हिज हेड, स्टक मतलब अटकी हुई थी हेड में, पुरानी सी कैप, विद सी वाटर। he was in wet rags of garments, है ना? wet rags मतलब फटे पुराने उसके कपड़े थे, wet rags में वो था। तो he was motionless मतलब बिना हिले डुले, बिल्कुल motionless। in his face he was in his wet rags, गीले फटे पुराने कपड़े थे, garments जो थे उसके। सदाव stopped Hana at his side and turned the man's head, जब उसका head उन्होंने पलटा, क्योंकि तो मुंह केबल नीचे गिरा हुआ था, मुंह नीचे था, मुंह केबल गिरना होता है नीचे, मुंह फेस लॉन्ग हम कहेंगे। दिस सो द फेस, चेहरा देखा। अ व्हाइट मैन, हाना विस्पर्ड। यस इट वाज अ व्हाइट मैन। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, है ना? पीले पीले से खराब से हेयर थे, लॉन्ग हेयर थे। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, कई हफ्तों से बाल काटे नहीं गए थे उसके। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज अ रफ येलो बियर्ड, मतलब खराब सी येलो सी बियर्ड थी। चेहरा कैसा था? यंग था, फौजी आदमी था वो, तो यंग था, और चेहरा क्या टॉर्चर्ड था, उसको तकलीफ दी गई होगी क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ वॉर था। आपको पता होना चाहिए दुनिया में कोई ऐसा रूल नहीं है जहां किसी फौजी को, किसी सोल्जर को टॉर्चर किया जाए। He should not be tortured actually. This, there is international law regarding this. If there is a war between two countries and if a soldier is captured, there is a rule that he will not be tortured because he is not fighting for his personal reasons. देश के लिए लड़ रहा है वो, किसी का निजी दुश्मन नहीं है, वो फौजी है। तो ये ध्यान रखना हमें कि उसको नहीं टॉर्चर किया जाता, लेकिन इसको टॉर्चर किया गया था। हमें पता है जब वर्ल्ड वॉर टू हुई तो उसमें जो नाजी पार्टी थी, जो जर्मनी के लोग थे, जापान के लोग थे, इटली के लोग थे, ये तीनों कंट्री एक तरफ थी, और इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रखा था, टॉर्चर किया था इनको, सोल्जर्स को, अदर कंट्रीज के सोल्जर्स को। चलो जी आगे देखते हैं। टॉर्चर्ड था, he was unconscious and knew nothing that they did for him, what they did for him, क्या किया उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि वो अनकॉन्शियस था बुरी तरीके से। नाउ सदाव रिमेम्बर्ड द वुंड, तुरंत ध्यान आया उसका घाव, वुंड होता है, इसको वाउंड नहीं पढ़ेंगे, इसको वुंड पढ़ेंगे। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, ब्लड फ्लॉड फ्रेशली, जैसे ही छेड़ा उसको घाव को, ब्लड जो ना फ्लो करना शुरू कर गया। एट हिज टच on the right side of his lower back, Sadav saw that a gun wound had been reopened, एक जो गोली से लगा हुआ घाव था वो खुल गया था। The flesh was blackened with powder, गन का पाउडर लगा हुआ था, ब्लैक हो गया था घाव उसका। Sometime not many days ago, शायद कुछ समय पहले ही उसको गोली लगी होगी। The man had been shot and had not been tended, गोली लगने के बाद उसको अटेंड नहीं किया गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसको फर्स्ट एड नहीं दिया गया। It was bad chance that the rock had struck the wound, और इसका बैड चांस था कि वो जिस पानी में से निकल के आया वहां जो स्पाइकी नुकीली रॉक्स थी, उनमें से कोई एक रॉक जो उस घाव के ऊपर ही लगी और उसको और ज्यादा तकलीफ हुई। ठीक है, तो इट वाज हिज बैड लक, वट एवर हैपेंड विद हिम। देन ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग,
हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस, बड़े ही सीरियस सी होके बोलती है, देखो कितना ज्यादा घाव निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। सोलम वॉइस, द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कंप्लीटली, एक तरीके से जो धुंध थी वो चारों तरफ फैल गई थी। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय, द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बेंचकॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड। सब चले गए थे, इवन द बेंच कॉम्बर्स कौन होते हैं, जो बीच के ऊपर जब लोग एंजॉय करने आते हैं और चले जाते हैं, तो कुछ लोग आते हैं पीछे से सामान उठाने के लिए, जैसे कि रैग पिकर्स होते हैं, कोई छोड़ गया हो, कोई जरूरी चीज उनको मिल जाए, उनको बोलेंगे बेंच कॉम्बर्स, जैसे रैग पिकर्स होते हैं। तो वो भी नहीं था वहां पे, उन्होंने भी सोचा अंधेरा हो गया, धुंध पड़नी शुरू हो गई, तो ऑल मस्ट हैव थॉट दैट द डे वाज एंडेड, भाई अंधेरा हो गया, सब कोई नहीं आने वाला था। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड, हल्के से बोलता है वो, फुसफुसा के, हल्के से बुदबुदा के बोलता है, बट इज ट्रेन हैंड सीम ऑफ them seemed of their own will to be doing what they could to staunch the fearful bleeding, रोकना, staunch means रोकना, fearful bleeding, बात कर रहा था जरूर, लेकिन वो तो प्रोफेशनल था, उसकी उंगलियां भी प्रोफेशनल थी, उसको पता था फटाक से क्या क्या हुआ। He started attending him actually, अब उसकी उंगलियां अपना काम कर रही थी, उसने क्या किया, he packed the wound with the sea moss, ये sea moss क्या होती है, जो काई होती है, रेत होती है, that stood the beach, stood मतलब जो बीच पे फैली हुई थी, उसने वो काई ली, अब घाव को भरना है तो कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना उसमें, उसने वो मॉस उठाई और सीधे उस घाव में भर दी। द मैन मोन्ड, कराने लगा वो, विद पेन इन हिज स्टुपर, मतलब बेहोशी के अंदर ही, बट ही डिड नॉट अवेकन, वो उठा नहीं एक्चुअली, he did not awaken actually। फिर क्या होता है, the man moaned with pain in his stupor but did not awaken, the best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadav said, answering himself। सवाल किसका था, सदाव का, इस आदमी के साथ क्या करें, जवाब किसने दिया, खुद ही दिया। क्या जवाब दिया, कि हमारे लिए बेस्ट चीज होगी अगर हम इसको उठा के वापस पानी में फेंक दें। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly, that would be the best, Hana said steadily. Hana ने भी यही कहा, यही बेस्ट होगा, उठा के वापस कहाँ डालते हैं, पानी में फेंक देते हैं। But she continued to stare down at the motionless man. हिला अपनी जगह कोई नहीं, उस मोशनलेस बॉडी को देखते रहे, इंसान को देखते रहे, हिम्मत नहीं हुई। प्लानिंग तो कर ली, उठा के पानी में फेंक दे वापस, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, यानी हमें अरेस्ट हो जाएंगे, अगर शेल्टर्ड होता है जगह देना, पनाह देना। And if we turn him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव said। अब सदाव ने क्यों कहा पानी में फेंक दें जी, इसको घर पे ले जाएंगे तो पुलिस हमें पकड़ेगी, we shall be arrested, और अगर इसको ऐसे छोड़ेंगे इस प्रिजनर को तो ये मर जाएगा। क्यों वो इतना सोच रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में एक फाइट चल रही है, देश के प्रति क्या करूं, ह्यूमैनिटी के लिए क्या करूं, ये सब उसके माइंड में चल रहा है। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा कि सबसे काइंडेस्ट थिंग यही होगी, दया वाली बात यही होगी कि इसको उठा के पानी में वापस फेंक देते हैं। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्जन। क्यूरियस रिपल्जन का मतलब होता है नफरत, चेहरे पे डिसलाइक, अपॉन द इनर्ट फिगर, इनर्ट अपॉन द इनर्ट, इनर्ट फिगर कौन है यहाँ पे, इनर्ट फिगर है वो प्रिजनर ऑफ वॉर। इनर्ट मतलब लाइफलेस हम कह सकते हैं, यहाँ पे इनर्ट मींस मोशनलेस कह सकते हैं, जो बंदा हिलडुल बिल्कुल नहीं रहा, उसको देख रहे हैं दोनों के दोनों, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, डिसाइड तो कर लिया वापस पानी में फेंके, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाव से। he took up the battered cap, एक जो कैप उठाई, जो फटी पुरानी कैप थी, battered cap, yes, there, almost gone, was the faint lettering, faint मतलब धुंधले से लेटर्स लिखे हुए थे, a sailor, sailor होता है नेवी का सैनिक, he said from an American warship, he spelled it out, US Navy, लिखा हुआ था उस पे US Navy, the man was a prisoner of war। समझ गए
केवल व्हाइट आदमी नहीं था वो कि कोई अमेरिकन था, वो तो प्रिजनर ऑफ वॉर था, फौजी था, सैनिक था। कौन सी सेना का? अमेरिकी सेना का। He has escaped, बच के भागना, बच के भागो, Hannah cried softly, and that is why he is wounded in the back. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution, Hannah ने कहा resolution के साथ, मतलब बड़ी हिम्मत के साथ कहा, come, are we able to put him back into the sea? चलो, क्या हम इसको फेंक पाएंगे? If I am able, are you? सदाव said. सदाव ने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तो फेंक सकता हूं, तुम फेंक सकती हो? नो, हाना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, अगर कर सकते हो तो अकेले ही करो, मैं नहीं कर सकती, आई विल नॉट डू दैट। तो यहां तक बात क्यों पहुंची हुई है, ऐसा क्यों है, उसने क्यों कहा कि तुम इसी काम को अकेले करो? उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? कि दोनों के अंदर के जो ह्यूमैनिटी है, दोनों का जो नेचर है, वो उनको परेशान कर रहा है। अगर वो क्रूअल होते बाकी लोगों की तरह तो कोई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसलिए उसके दिमाग में जो ना एक जिसको हम कहते हैं ना कि द्वंद्व या एक फाइट चल रही है, ड्यूटी एज अ कंट्री करें या ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग करें, ड्यूटी एज अ डॉक्टर करें, क्या करें? दोनों के अंदर कंपैशन है, काइंडनेस है, एंड दे हैव वैल्यू फॉर ह्यूमैनिटी, ये हमें समझना है। Sadav hesitated again. The strange thing is, the strange thing is that if man were whole मतलब अगर ये आदमी ठीक ठाक होता, I could turn him over to the police without difficulty. बिना किसी डिफिकल्टी के इसको पुलिस को दे देते अगर ये ठीक ठाक होता तो। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इससे कोई सहानुभूति नहीं है, सिंपैथी नहीं है। आई डोंट केयर फॉर हिम, ही इज माय एनिमी, ऑल अमेरिकन्स आर माय एनिमी, एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और ये केवल एक कॉमन फेलो है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो चेहरा कैसा बेवकूफ जैसा है, बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन चूंकि वो घायल है। अब देखो दोनों चीजें मिक्स कर रहा है वो, उसको दुश्मन भी बता रहा है, उससे हेट भी करता है, लेकिन फिर भी बातों को घुमा रहा है, ये तो कॉमन मैन है, हाँ ये दुश्मन है लेकिन ये तो आम आदमी है ना, लेकिन ये तो घायल है। तो ये चीजें क्यों उसको परेशान कर रही हैं? क्योंकि वो एक जेन्युइन डॉक्टर है, ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं है 70-80 लाख रुपए दे के डोनेशन के, और लोगों का क्लिनिक खोल के जो ना ज्यादा हॉस्पिटल्स में पैसा कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बनाया वो लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर बनाया, इसलिए शायद अपनी जान भी यहाँ पे वो जोखिम में डाल रहा है। ही इज रिस्किंग हिज लाइफ हियर। You also cannot throw him back to the sea, Hannah said, कि तुम भी उसको पानी में नहीं फेंक सकते। Then here is only one thing to do, एक ही चीज है अब करने के लिए, और वो क्या है? We must carry him into the house. But the servants, सदाव inquired, लेकिन सर्वेंट्स का क्या करेंगे? वो तो मानेंगे नहीं, वो तो परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्वेंट्स के पास बेटे वो थॉट नहीं है, वो लेवल नहीं है कि वो उस चीज को समझ पाए, इसलिए उनको पता है कि सर्वेंट्स उनकी बात को नहीं मानेंगे। We must simply tell them that we intend to give him to the police. As indeed we must, Sadao, we must think of the children and your position. It would endanger all of us. Endanger होता खतरे में डालना। वो कहते हैं कि हम उसने क्या कहा हाना ने, कि हम सिंपली ये बताएंगे कि हम तो इसको पुलिस को देने वाले हैं, ठीक है, और वो वही हम करेंगे, इसको ठीक करने के बाद भी वही हम करेंगे, पुलिस को ही देंगे, ठीक है, और हमें देखना पड़ेगा हमारी रेपुटेशन खतरे में नहीं पड़ जाए, ठीक है, और ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी अगर हम इसको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर पुलिस को, आर्मी को नहीं सौंपेंगे तो वी वुड बी इन डिफिकल्टी। तो दोनों को लगा कि ट्रबल हो सकती है, सर्टनली सदाव अग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। डिसाइड हो गया, ठीक है, मैं भी कुछ और दिमाग में नहीं सोचूंगा, हम इसको लेके चलते हैं, इसको देखते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, एंड देन वी विल डिसाइड, देन हम क्या करेंगे, इसको अथॉरिटीज को दे देंगे। दे अग्रीड टुगेदर, दे लिफ्टेड द मैन, उठाया उसको, ही वाज वेरी लाइट, बिल्कुल हल्का सा, लाइक अ फाउल, है ना, जैसे चूजा होता है ना छोटा सा, किसका? मुर्गी का बच्चा होता है, उसकी तरह उसका वेट था, लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाफ स्टार्व्ड होता भूखा रखना उसको, भरपेट खाना नहीं खिलाया गया उसको बड़े लंबे समय से, until he is only feathers and skeletons, जैसे
उसके अंदर केवल कंकाल रह गया, फेदर्स रह गए, हल्की सी स्किन और कंकाल रह गया, बिल्कुल स्केलेटन हो गया। तब तक उसको भूखा मारा गया है, यानी उसको टॉर्चर किया गया है। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरिड हिम टू द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। घर के पास का साइड डोर था, उसमें लेके गए। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, बाहर से जो ना मेन गेट से भी जो साइड में डोर था उसमें से अंदर घुसे। ये अंदर एक पैसेज में जाता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, पैसेज से होते हुए एक खाली बेडरूम में उसको लेके आए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर। देखो कितनी बड़ी आयरनी है। डॉक्टर सदाव के फादर, ही वाज अ पेट्रियोटिक पर्सन, ही वाज अ नेशनलिस्ट, ठीक है। वो कभी भी इस चीज को जिंदा रहते तो एक्सेप्ट नहीं करते, भले ही वो आदमी मर जाए या उनको अपने हाथों से मारना पड़ता। लेकिन देयर इज आयरनी कि उसी के बेडरूम में उसको लाना पड़ा, लेके आए उसको। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ डॉक्टर सदाउस फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड भी नहीं हुआ था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, मैट बड़ा सुंदर सा लगा हुआ था, उसके ऊपर लिटाया उन्होंने। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, इस रूम में सब कुछ जापानीज था, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं सब कुछ देसी हो, हमारे देश का हो, स्वदेशी हो, तो वहां सब कुछ जापानीज था। एवरीथिंग, हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, वो कभी भी अपने घर में एक तो चेयर पे नहीं बैठे और फॉरेन विदेशी बेड पे नहीं सोए, उसके पिताजी। Hannah went to the wall cupboards and slid back a door, है ना, कबर्ड में से गए, दरवाजा खोला एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, रजाई, क्विल्ट होती है रजाई, एक सॉफ्ट सी रजाई निकाली। लेकिन थोड़ी सी हेजिटेशन हुई, सी हेजिटेटेड, हल्की सी हिचकिचाई वो उसको उड़ाने से पहले। क्यों? द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वाज प्योर व्हाइट सिल्क, बिल्कुल व्हाइट सिल्क की तरह थी, बड़ी सुंदर सी रजाई थी। उस व्हाइट आदमी पे डालेगी, वो ब्लड से सना हुआ है और वो खराब हो जाएगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब दो ही चीजें हैं, अगर आपकी ह्यूमैनिटी आपको सुपरसीड करेगी तो आप कोई भी खर्चा, कोई भी नुकसान झेल सकते हो। लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं करता, किसी की मदद ही नहीं करता। व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या हुआ? ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, इन डिस्ट्रेस मतलब परेशानी में, हल्के से मर्मर्ड, बुदबुदाती है, कितना गंदा है ये इंसान, है ना। I cannot bear, sorry. Yes, he had been, so he had better be washed. डॉक्टर सदाव ने कहा इसको क्लीन करना पड़ेगा। इफ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, तुम पानी ले आओ, आई विल क्लीन हिम। आई कैनॉट बेयर यू फॉर यू टू टच हिम, वो कहते मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम इसको टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, आई विल टेल यूमी नाउ, मैं जाके यूमी को बताती हूँ, उनकी जो अटेंडेंट है, बच्चों को संभालती है। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, ओके लेट इट बी सो, ठीक है ऐसा ही रखो। ही अग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। डिसाइड हुआ कि डॉक्टर सदाव किसको बताएंगे? सर्वेंट्स को, अदर सर्वेंट्स को, और यूमी किस वो किसको बताएगी? यूमी को। तो ये डिसाइड हुआ, दोनों ने डिसाइड किया एंड दे थॉट कि भाई वो उसको क्लीन करेंगे। फिर क्या हुआ? Sadao considered a moment, but the utter pallor of the man's unconscious face moved him. Moved करना होता इमोशनल कर देना फर्स्ट। निकलने से पहले उसने फिर से देखा, उसका चेहरा देखा, पैलर मतलब उसका फेस पीला सा पड़ा हुआ था। फर्स्ट स्टूप, झुका, वो झुके टू फील हिज पल्स, पल्स चेक की, इट वाज फेंट बट इट वाज देयर। ही पुट हिज हेड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड हैंड, अगेंस्ट मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, हार्ट टू वाज येट अलाइव। हाथ से चेस्ट को उसने हार्ट को फील किया तो वो जिंदा था वो इंसान। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, Sadav said, considering. The question is whether he will not die anyway. वो कहता है कि इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इंसान मरना ही नहीं चाहिए? अब उसके हिसाब से तो मरना चाहिए। क्यों मरना चाहिए भाई? वाई ही शुड डाई? इसलिए मरना चाहिए क्योंकि वो उनका दुश्मन है। दिस इज द रीजन, और कुछ भी नहीं।